کربلا کی عظیم قربانی کو سلام۔ ملک بھر میں نویں محرم الحرام کے جلوس، کراچی، اسلام آباد، لاہور سمیت تمام شہروں میں سیکیورٹی کے انتظامات۔ کئی مقام پر جلوسوں کے کیمروں سے نگرانی کی جا رہی۔ کراچی میں 9 محرم سیکیورٹی کے لیے 20,000 سے زائد اہلکار تعینات۔ لاہور میں نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس آج پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوگا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا خیمہ سادات امام بارگاہ پہنچے گا۔ ملتان میں مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ ممتاز آباد سے برآمد ہوگا۔ جلوس کے راستوں کی CCTV کی مدد سے مانیٹرنگ جاری ہے۔ اسلام آباد میں نویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ G6 اثنا عشرہ سے برآمد ہوگا۔ جلوس کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں نویں محرم الحرام کا شبیہ الجناح کا امام بارگاہ ناصر الاضحیٰ سے برآمد ہوگا۔ شہر میں موبائل فون سروس بند کر دی گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 9 محرم الحرام کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین نے ہمیشہ درس دیا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹے رہو۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بیان میں کہا کہ نہ ظلم کرنا چاہیے، نہ ظلم قبول کرنا چاہیے، نہ ہی ظلم کے سامنے خاموش رہنا چاہیے۔ انسان اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر اپنی ذات ہی نہیں۔ انسان تنہا ہو سکتا ہے مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری جانب ایران نے امریکی حکام کے متضاد بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی منمانی تشریح سے گریز کرے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے امریکہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ متضاد بیان ماضی کی وعدوں خلافیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین 2 روز کے لیے معطل۔ پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس کو جیکب آباد میں روک لیا گیا۔ ٹرین سروس 9 اور 10 محرم الحرام پر سیکیورٹی خدشات کے باعث معطل رہے گی۔ عاشورہ کے بعد امکان ہے ٹرین سروس بحال کر دی جائے گی۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں اور گرد و نواح میں 2 طاقتور زلزلوں نے شدید تباہی مچا دی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پہلے 7.2 اور صرف چند سیکنڈ بعد 7.5 شدت کا دوسرا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے وینزویلا میں زلزلے کے باعث 10,000 سے 1 لاکھ کے درمیان اموات کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ زلزلوں کے جھٹکے پورے وینزویلا میں محسوس کیے گئے۔ پڑوسی ملک کولمبیا تک زلزلے محسوس کیے گئے اور ہراس پھیل گیا۔ حکام نے ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے امدادی اور ریسکیو کارروائیاں شروع کر دیں۔ کئی علاقوں میں عمارتوں کے ملبے تلے افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ وینزویلا کے مرکزی بین الاقوامی ہوائی اڈے کو شدید نقصان پہنچا، جس کے باعث پروازوں کی آمد و رفت معطل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وینزویلا میں زلزلے سے تباہی و نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے وینزویلا حکومت، عوام، متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا۔ کہا زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں متاثرہ افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہیں۔ وینزویلا میں ایک کے بعد دیگرے زلزلے کے جھٹکوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ امریکی ماہرین کے مطابق زلزلے کے باعث بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا خدشہ ہے۔ قطری وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امریکہ ایران معاہدے کے بعد علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ قطر اور سعودی عرب کے اعلیٰ سفارتکاروں نے خلیج میں کشیدگی کو کم کرنے اور ہم آہنگی کے لیے فون پر بات کی۔ قطر کے بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت کی یادداشت کے بعد خطے میں سلامتی استحکام کو مضبوط بنانے کی کوشش کا جائزہ لیا۔ یہ بات چیت خلیجی ریاستوں کی طرف سے واشنگٹن، تہران کے درمیان مہینوں کے تنازع کے بعد امن بحال کرنے کے وسیع تر دباؤ کی عکاسی کرتی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 5% سے زائد کمی ریکارڈ۔ دوران ٹریڈنگ برنٹ خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل ہو گئی، جبکہ WTI خام تیل 70 UAE مربن $66 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ ایران امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے معاہدے کے بعد سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مختلف منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی اضافی گرانٹس کی منظوری دی۔ کمیٹی نے بجلی کے شعبے کے لیے 52 ارب روپے، جبکہ سول آرم فورسز کے شہدا کے خاندان کے لیے 4 ارب 20 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ ECC نے الیکٹرک کی سبسڈی سے 93 ارب
60 करोड़ रुपए दीगर डिस्कोस को मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। SNGPL के 50 अरब रुपए के बैंक कर्ज पर हुकूमती ज़मानत में तोसी कर दी। कमेटी ने पाकिस्तान रेलवेज़ की ग्रांट में 7 अरब रुपए का इजाफा मंजूर किया। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी का सिलसिला जारी रखने का फैसला। पाकिस्तान अजान खिदमत सेंटर फ़ेज़ 2 के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए, स्मार्ट इस्लामाबाद मनसूबे के लिए 91 करोड़ रुपए, शांगला के तरक्याती मनसूबों के लिए 79 करोड़ रुपए मुंतकिल करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद में मार्का हक यादगार मनसूबे के लिए 2 अरब रुपए, जबकि यौम आज़ादी मार्का हक की तकरीबात के लिए 1 अरब 29 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। माहीगीरी की कश्तियों में मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब करने के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस, फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के लिए 25 करोड़ रुपए, FIA के अखराजात के लिए 19 करोड़ 32 लाख रुपए, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के लिए 2 करोड़ 24 लाख रुपए मंजूर किए गए। FBR ने टेक्सटाइल मिल्स को कैमरे नस्ब करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। ज़रा FBR के मुताबिक 1 जुलाई से टेक्सटाइल मिल्स पर कैमरे नस्ब होंगे। 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दी है। FBR का कहना है टेक्सटाइल मिल्स कैमरे अपने अखराजात पर लगवाएंगी। कैमरे न लगवाने पर मिलें बंद तस्वुर होंगी। FBR शुगर सीमेंट खाद फैक्ट्रियों में कैमरे नस्ब करा चुका है। पाकिस्तान ईरान ने मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फ़ाल करने पर इत्तफाक कर दिया। इस्लामाबाद में ईरान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर तिजारत जाम कमाल, वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार मौजूद थे। इजलास में पाक ईरान मुतालिका सीनियर हुक्काम भी शरीक हुए। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, दोनों ममालिक के माबैन ज़मीनी रवाबत की मजबूती से तिजारती मौक़े बढ़ेंगे। ईरान पाकिस्तान के दरमियान ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मसाइल को हल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक ने जंग रुकवाने और अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मस्बत किरदार पर इज़हार तशक्कुर किया। दोनों ममालिक के दरमियान ट्रकों कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला उठाया। फरीकैन ने पाक ईरान बॉर्डर पर हल तलब मसाइल के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक किया। इस्लामाबाद के इलाके बारकहू बाईपास पर आटे से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर उलट गया, जिसके नतीजे में सड़क किनारे मौजूद एक ही खानदान के 2 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची जख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक बच्चा, एक खातून शामिल। जख्मी बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। तहकीकात के मुताबिक ट्रक का अगला एक्सल टूट गया था, जिसके बायस ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना रख सका। बेकाबू ट्रक सड़क किनारे पैदल चलने वाले अफराद पर चढ़ दौड़ा और उलट गया। हादसे के फ़ौरन बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फ़रार। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस ने ट्रक को अपनी तहवील में लेकर इस पर तकनीकी मुआयना शुरू कर दिया ताकि हादसे की वजूहात का तयन किया जा सके। वाक़े के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने SSP ऑपरेशंस के हमरा जय वक़ूअ का दौरा किया, इमदादी इंतज़ामी इक़दाम का जायज़ा लिया। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में कौमी हॉकी टीम के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया गया। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर हसीब बिन अजीज़ ने की, जबकि हाई कमीशन के अफसरान अमले ने कौमी टीम का इस्तक़बाल किया। कौमी हॉकी टीम के हेड कोच मंजूरुल हसन ने खिताब करते हुए कहा, टीम ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया, हर गुजरते दिन के साथ इसकी कारकर्दगी नुमाया है। भारत के खिलाफ खेले गए मैचेस में टीम ने ज़बरदस्त फाइट किया। तजर्बे में रैंकिंग में बेहतरी वाली टीम के मुकाबला करते हुए सलाहियतों का शानदार मुजाहिरा। हसीब बिन अजीज़ ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की टीम की मेज़बानी करना पाकिस्तान हाई कमीशन के लिए बाइस एज़ाज़ है। उन्होंने टीम के तमाम खिलाड़ियों ऑफिशल्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और तकरीब में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की गवर्निंग बोर्ड के रुकन परवेज़ संधेला, टीम मैनेजर साबिक ओलंपियन ख्वाजा मोहम्मद जुनैद, नायब कोच साबिक कौमी खिलाड़ी मोहम्मद वसीम समेत दीगर ऑफिशल्स मेहमानों ने शिरकत की। शुरा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कौमी हॉकी टीम मुसलसल मेहनत कर रही है और आलमी सतह पर अपना मुकाम हासिल कर रही है। पाकिस्तान के कौमी खेल एक बार फिर अपने उरूज पे जाने गामज़न। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क में कहीं गर्मी तो कहीं रिमझिम। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने का इम्कान, चंद इलाकों में बारिश की पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद गिरदोरहवा में मुतला जज़वी अबरालूद है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि दीर सवात कोहिस्तान एबटाबाद मानसरा के चंद मुकाम पर बारिश हो सकती है। पंजाब में मरी गिलियात झेलम शेखुपुरा सियालकोट नारवाल पाकपतन बिहाड़ी डीजे खान में चंद मुकाम पर बारिश मुतवक्के है। सिंध के साहली इलाकों में चंद मुकाम पर बूंदाबांदी।
बलूचिस्तान में शिरानी, मूसा खेल, कोहलो, बारखान में बारिश मुतवक्के, दीगर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मानसून की आमद से कबल कराची का मौसम मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार है। मतलब अबरालूद फ़ज़ा में नमी का तनासब बुलंद और गर्मी की शिदत में इजाफा। ऐसे में 9 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस के दौरान शहरियों और अज़ादारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। तफसीलात जानिए। कराची का मौसम मानसून की आमद से कबल मुसलसल उतार चढ़ाव का शिकार है। शहर कायद में आज मुतला ज्यादातर अबर आलूद है, जहां फी मील घंटे की रफ्तार से चलने वाली समंदरी हवाओं ने फिजा में मौजूद गर्मी की शिद्दत को किसी हद तक काबू कर रखा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का ज्यादा से ज्यादा असल दर्जे हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहम हवा में 67% बुलंद नमी के बाद ये तपिश इंसानी जिस्म को 38 से 40 डिग्री तक महसूस हो रही है। मौसम के इस मरतूब सूरत हाल के बीच आज शहर कायद में रिवायती जुलूस भी बरामद होगा। इंतजामिया की जानिब से जुलूस के मुकर्ररा रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जहाँ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। शदीद हब्स और घुटन के बायस तबी माहिरीन ने अजादारों और शहरियों को खास तौर पर शदीद एहतियात करने की हिदायत की है। तवील मुसाफत और तपिश के पेश नजर जुलूस के शुरा पानी, ORS और लीमू पानी का इस्तेमाल मुसलसल जारी रखें ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। इसके अलावा सर को ढांप कर रखने और जुलूस के रूट्स पर कायम तिब्बी कैंप से राब्ते में रहने की ताकीद भी की गई है। कैमरा टीम के साथ सहर खान, NTN न्यूज, कराची। गरीबों के लिए कायम कराची शहर के सबसे बड़े जिना अस्पताल को इंतजामिया ने मुबैना तौर पर ठेकेदारों के हवाले कर दिया। जिना अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी अमला मरीजों से रिश्वत वसूल करने लगा। मुख्तलिफ इमरजेंसी वार्ड्स में गैर तरबियत याफ्ता इंटर्नी अमला तैनात होने का भी इंकशाफ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर NTN न्यूज़ जीशान मलिक से। जी जीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अंधेर नगरी चौपट राज के मुस्ताक कराची के सबसे बड़े जिना हॉस्पिटल को मुबैना तौर पर ठेकेदारों के हवाले कर दिया गया है। सिक्योरिटी पर तैनात अमला जो मुख्तलिफ वार्ड्स में, चाहे वो मेन ट्रामा सेंटर इमरजेंसी हो, चाहे वो गायनी इमरजेंसी हो, चाहे वो OPDs हो, उनमें जो तैनात सिक्योरिटी पे अमला जो है वो मरीजों से दाखिले अंदर जाने के लिए 100 रुपए के करीब रिश्वत जो है वो वसूल करना शुरू हो गया है। मरीज जो हैं वो रुल गए हैं। मुख्तलिफ वार्ड जो हैं, गायनी 8 एमरजेंसी की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर गुज़िश्ता रात इंटरनी अमला जो गैर तरबियत याफ्ता अमला है उसको भी तैनात होने का इंकशाफ हुआ है। कोई भी सीनियर डॉक्टर जो है वो गुज़िश्ता रात ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। ताहम मेन ट्रामा सेंटर में भी अगर बात की जाए सिक्योरिटी स्टाफ की तो वो भी मुबैना तौर पर शहरियों से रिश्वत वसूल करता है। गायनी के जो अमराज होते हैं खवातीन के लिए इमरजेंसी में, जो खवातीन मरीज होते हैं उनको लाया जाता है गायनी वार्ड्स में। गायनी की मुश्किलात के हवाले से चेकअप के लिए इमरजेंसी के अंदर गायनी वार्ड 8 में कल वार्ड 9 के जो स्टाफ है उनकी ड्यूटी थी। ताहम वहाँ पर कोई भी सीनियर RM वहाँ पर मौजूद नहीं था, कोई भी सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। वहाँ पर जो गैर तरबियत याफ्ता इंटरनी अमला जो था वो तैनात था। इसके साथ ही साथ वहाँ पर दाखिले के लिए मर्द हजरात का दाखिला जो है वो ममनू होता है। ताहम वहाँ पर जो सिक्योरिटी अमला तैनात है वहाँ पर वो 100 रुपए रिश्वत वसूल करके मर्द हजरात के दाखिले के लिए उस इजाज़त देता था। ताहम जो तर्जुमान जिना हॉस्पिटल वकास साहब है उनसे हमारा रब्ता करने की बारहा कोशिश की है, ताहम उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। उन्होंने कोई भी फ़ोन कॉल उठाने से गुरेज किया है। जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर सलमान से भी रब्ता करने की कोशिश की गई, इस हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है। ताहम उनकी जानब से भी फ़ोन कॉल का या मैसेज का जवाब नहीं दिया गया है। ताहम मुबैना तौर पर जिनाह अस्पताल इंतज़ामिया ने जो है वो तमाम तर हॉस्पिटल को जो गरीबों की वाहद उम्मीद होती है उसको मुबैना तौर पर ठेकेदारों के हवाले कर दिया है। और तो और जो जिस पर्ची पर, जिस कागज़ पर मरीज़ों के लिए दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो भी शायद वहाँ पर नापैद हो चुके हैं, क्योंकि छोटी-छोटी जो पर्चियाँ होती हैं तो उनके ऊपर मेडिसिन लिख कर दी जाने लगी है वहाँ पर अमला की जानिब से। इस हवाले से हमने बात करने की कोशिश की है जिना हॉस्पिटल इंतज़ामिया से, हम किसी ने भी अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ किया है। बहुत शुक्रिया जीशान मलिक।
بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN.